I hope you all are doing well. So let's continue with the series. In last class, we have done your topic nutrition of chapter life processes. Now we will continue with the your next topic, that is your respiration. So I told you in the previous class, I think in first class or second class, that there is a difference between a inhalation, exhalation and respiration. Basically, there is a difference between a breathing and respiration. So we will study that here. So let's start with the topic. And topic is your respiration. So जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, तो एनी वन ऑफ यू रिमेंबर दैट डिफरेंस? डोंट वरी, आई विल टेल यू दैट क्या होता है आपका जब आप इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट आपने करा, ठीक है, दिस इज योर ब्रीदिंग, दिस इज नॉट योर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज समथिंग दैट आपने इनहेल किया, आपने एक्सहेल किया और उस एक साइकिल के अंदर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गया और आपके बॉडी के अंदर जो फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो अगर आप रेस्पिरेशन की बात करें, दैट इज, अगर हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड to provide energy or to obtain energy in form of ATP. And I hope you all know the full form of ATP. ATP is your adenosine triphosphate. Fine. So now we will see the reaction that happens in your body. So how your food breaks to provide you energy. See, food enters in your body in the form of glucose, and the formula of glucose is C6H12O6. I hope you all know. When you breathe, आपने breathe किया, that oxygen is coming to break your food. ठीक है, अब ये आपका खाना किस चीज में ब्रेक होगा? It will break down into water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. और वो भी एनर्जी मैंने भी आपको बताया किस फॉर्म में होती है वो एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो दिस इज योर प्रोसेस इन जिसमें आपका जिस तरीके से आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर टू प्रोवाइड यू द एनर्जी. ठीक है, अब फर्दर रेस्पिरेशन जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वी विल रीड अबाउट बोथ. So there are two types of respiration. We name them as, one is your aerobic or aerobic and second is your anaerobic. I hope आप सबने सुना होगा कि aerobic एक्सरसाइज करनी चाहिए. जिम आपकी जो जिम मेंबरशिप्स होती है उन पर लिखा होता है aerobic एक्सरसाइजेस, जुम्बा, डांस क्लासेस. तो उस aerobic का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो आप एक्सरसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नॉन एज एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं. सो एरोबिक इज योर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इज योर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. This is your two types of respiration basically, and anaerobic further divides into two parts, that is your lactic acid fermentation and second one is your alcoholic fermentation. Fine. So हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों लैक्टिक एसिड को और अल्कोहलिक को, कि कैसे आपकी जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये दोनों चीजें उसमें फॉर्म होती हैं. मतलब बेसिकली इनमें उन रिएक्शंस में लैक्टिक एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, तो हम देखेंगे कि वो कैसे होती है. फाइन. सो आपको डिफरेंस तो समझ आ गया. अच्छा, वी विल स्टेट अ डिफरेंस हेयर कि क्या क्या होता है. Now we will state a difference between your breathing and respiration and your aerobic and anaerobic respiration. So it's important to know that what's the difference. And as I told you earlier, that breathing is your inhalation and exhalation, and respiration is your just breakdown of food to provide
you with the energy. So what is breathing? Breathing is your physical process and respiration is your chemical process. And second, the difference we can state that is breathing is inhalation and exhalation, like intake of oxygen and release of carbon dioxide, and respiration is breakdown of food to provide you energy. It's a whole process. ठीक है? And breathing is a part of respiration. Respiration का part है breathing. Breathing is not a whole process. It's a part of respiration. But respiration is a whole process. It's a part of respiration. And it's a whole process. ठीक है? Now what's the difference between aerobic and anaerobic? Major difference तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो aerobic होता है that's in the presence of oxygen and anaerobic is in the absence of oxygen. So what are other differences? What make them differentiate from each other? So number one is जो मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन होती है इसमें आपकी ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है. एंड सेकेंड डिफरेंस इज एरोबिक में क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है ना वो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है. कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है आपकी ग्लूकोज की, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है ग्लूकोज की, और उसमें आपकी जो ग्लूकोज होता है उसकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है. दैट्स अ मेजर डिफरेंस. अगर आपको कोई पूछे कि एरोबिक और एनारोबिक होती किसमें है, व्हाट्स द डिफरेंस? एरोबिक एज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग क्या है, मैमल्स है ना, तो मैमल्स और आपके जितने भी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब इनमें एरोबिक होता है. और एनारोबिक आपकी होती है कुछ, एक तो ईस्ट के अंदर और दूसरा कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं आपके जिनके अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. So this is the difference between your breathing and respiration and aerobic and anaerobic respiration. And one more thing, that ATP is also known as your energy currency of cell. And that you should remember. Fine. We will study about that reaction जो मैं आपको पहले बताया था कि आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन टू कंडीशन, दैट इज योर एरोबिक इन प्रेजेंस एंड एनारोबिक दैट इज योर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और इन एब्सेंस में भी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, दैट इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकंड इज योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सो व्हाट हैपेंस इज, सी ग्लूकोज जो होता है वो आपका होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल और वो ब्रेकडाउन होता है आपके साइटोप्लाज्म में, और वो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाता है विच इज नोन एज योर पायरूवेट. और ये जो पायरूवेट होता है वो होता है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल. अब ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है इनटू योर इन डिफरेंट कंडीशंस, दैट इज योर एरोबिक एंड एनारोबिक. तो सबसे पहले ये एक आपकी कंडीशन हो गई एरोबिक और सेकंड हो गई आपकी एनारोबिक कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा. मैं बार बार साथ में से लिख रही हूँ कि दैट यू शुड रिमेंबर कि ये जो ऑक्सीजन वाला है वो एरोबिक है और जो ऑक्सीजन वाला नहीं है वो एनारोबिक है. ठीक है, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. सो एरोबिक में क्या होता है, सी एरोबिक किसमें होती है, इन ह्यूमन बींग्स और इन मैमल्स. तो उसमें आपका क्या बनता है, जो मैंने वेरी फर्स्ट रिएक्शन इन द स्टार्टिंग ऑफ योर लेक्चर मैंने करवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो एरोबिक में यही बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब जो एनारोबिक है वो आपकी फर्दर 2 तरीके से होती है, दैट इज इन योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपका क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपकी कि किस ऑर्गेनिज्म में होती है, किस चीज में आपकी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, दिस अकर्स इन योर ईस्ट. और जो आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है दैट अकर्स इन योर मसल सेल्स. ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जब ईस्ट में ये चीज होती है तो इसमें क्या बनता है आपका, अब हमने बोला कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑब्वियसली इसमें क्या फॉर्म हो रहा होगा, एल्कोहल. तो कौन सी एल्कोहल फॉर्म होती है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी.
एंड इन योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन व्हाट हैपेंस इज, क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, योर लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. और ये लैक्टिक एसिड आपने, अगर आप में से कोई जिम जाता है या आपने कभी सुना होगा, मतलब अगर आपके घर में से, आप आस पड़ोस में से भी कोई जिम जाता है कि हमें ना क्रैम्प्स हो गए हैं, या कोई नॉर्मल जिम भी नहीं जाता, रनिंग करता है, वर्कआउट करता है, तो बोलते हैं कि हमें ना मतलब दर्द हो रही है टांगों में, कमर में दर्द हो रही है, खिंच पड़ गई है, तो मतलब हमें ना क्रैम्प्स आ रहे हैं. तो टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज क्रैम्प. तो क्रैम्प किस वजह से आते हैं, दैट occurs due to your lactic acid formation in your muscle cells. जब आपकी एक्सेसिव वर्कआउट या एक्सेसिव जिमिंग या रनिंग के बाद जब आपकी बॉडी में, आपके मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है. इसमें एब्सेंस नहीं होगा, मतलब कमी हो चुकी है ऑक्सीजन की. हांफना शुरू कर देते हैं ना आप जब वर्कआउट करते हैं. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब आपकी बॉडी की मसल सेल्स में होती है, तो व्हाट इट फॉर्म्स योर लैक्टिक एसिड with energy. So this is basically your whole respiration, like how glucose break down into two forms in your aerobic and anaerobic. So further we will talk about your respiration in human beings.